ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات ملتان بار کی تاریخ میں پہلی بار خاتون امیدوار صدر منتخب ہو گئی۔ سیدہ بشرا نقوی نے بھاری ووٹوں سے میدان مار لیا۔ صدر کی نشست 282 ووٹ حاصل کر کے کامیاب۔ مد مقابل چودھری محمد افضل جٹ نے 973 ووٹ حاصل کیے۔ نائب صدر کی نشست پر نعیم آرائیں 919 ووٹ لے کر کامیاب۔ ڈی جی خان میں صدر کے عہدے پر محمد سلیم جان کھوسا 624 ووٹ لے کر کامیاب۔ نائب صدر کے عہدے پر محمد رمضان لغاری 533 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ جنرل سیکریٹری کے عہدے پر خالد عباس گوپانگ 587 ووٹ لے کر کامیاب۔ جوائنٹ سیکریٹری کے عہدے پر ذیشان بلال بزدار 732 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ اور مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے نتائج بھی جاری۔ انتخابات میں سعد اللہ صدر اور امتیاز سہرانی جنرل سیکریٹری منتخب ہو گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے نتائج جاری۔ انتخابات میں سعید اللہ صدر اور امتیاز سہرانی جنرل سیکریٹری منتخب۔ عاطف شبیر خان نائب صدر اور رضوان رازی جوائنٹ سیکریٹری منتخب ہو گئے۔ جام شبانہ کوثر لائبریری سیکریٹری اور جاوید سانما آڈیٹر منتخب ہو گئے۔ جیتنے والے امیدواروں کی جانب سے آتش بازی کا مظاہرہ ڈھول کی تھاپ پر جشن منایا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان اور سرگودا بار کے مظفر گڑھ بار کے الیکشن کے نتائج جاری کر دیے گئے۔ اور بہاولپور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کا عمل مکمل۔ نتائج کے مطابق صدر کی نشست پر شیخ خورشید سہو اور جنرل سیکریٹری کی سیٹ پر منیب بھٹی نے میدان مار لیا۔ جیتنے والوں کے حامی وکلا نے فتح کا بھرپور جشن منایا۔ آپ کو بتائیں کہ بہاولپور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کا عمل مکمل۔ نتائج کے مطابق صدر کی نشست پر شیخ خورشید سہو اور جنرل سیکریٹری کی سیٹ پر منیب بھٹی نے میدان مار لیا۔ جیتنے والوں کے حامی وکلا نے فتح کا بھرپور جشن منایا۔ تفصیلات محمود ظہیر کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات صدر اور جنرل سیکرٹری کی نشست پر پولنگ کا عمل مکمل۔ صدر بار کی نشست پر شیخ خورشید سہو نے 549 ووٹ لے کر میدان مار لیا، جبکہ منیب بھٹی نے 587 ووٹ حاصل کر کے جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر کامیابی حاصل کر لی۔ اپنے ان بزرگوں کا، اپنے بھائیوں کا اور اپنی بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسپیشلی میں اپنے کلاس فیلوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بھرپور سپورٹ کی اور مجھے اس مقام پر لے کر ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس مقام کے اوپر اور مجھے فتح نصیب کی۔ میں اپنے گروپ کے سینئرز کا، اپنے والد صاحب کا، ذیشان بھائی کا اور سب اپنے بار کے معزز ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے کامیاب کیا۔ صدر اور جنرل سیکرٹری کے علاوہ دیگر تمام نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار بہاولپور بینچ ندیم اقبال چودھری اور ممبر مجلس عاملہ پنجاب بار کونسل ذیشان حیدر کا کہنا تھا کہ جیت وکلا کے اعتماد کا نتیجہ ہے۔ بہاولپور کے وکلا کا ان پہ اعتماد کا اظہار ہے، تو انشاءاللہ ہم پوری امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہ دوست انشاءاللہ اپنی فتح شاندار فتح جس طرح سے ملے انشاءاللہ یہ شاندار روایت کو لے کر آگے چلیں گے اور انشاءاللہ بار کے بہتر مستقبل کے لیے بہت اچھا کام کریں گے۔ بڑی حکمت سے، دانائی سے ساری سیاسی بساط بچھائی ہے اور ہمارے سارے دوستوں نے آج بھرپور محنت سے ہائی ٹیم سپرٹ کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ بار میں ووٹرز کی ٹوٹل تعداد 1478 ہے، جن میں سے 1060 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ ڈسٹرکٹ بار الیکشن کے لیے فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر عبدالوہاب نے بھی پولنگ کے معاملات کا جائزہ لیا۔ کیمرہ مین شاہ سکلین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں بار ایسوسی ایشن کے الیکشن مکمل۔ حاصل پور میں شاہ گروپ اور دنیا پور میں اختر اقبال گروپ نے میدان مار لیا۔ عیسیٰ خیل میں یونائٹڈ گروپ جبکہ خوشاب میں قائد اعظم لائرز گروپ کے امیدوار کامیاب قرار پائے۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں بار ایسوسی ایشن کے الیکشن مکمل۔ حاصل پور میں شاہ گروپ اور دنیا پور میں اختر اقبال گروپ نے میدان مار لیا۔ عیسیٰ خیل میں یونائٹڈ گروپ جبکہ خوشاب میں قائد اعظم لائر گروپ کے امیدوار کامیاب قرار پائے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ حاصل پور میں بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا عمل مکمل۔ شاہ گروپ کے میاں عبدالجبار ایڈوکیٹ 176 ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے۔ سعید احمد اولک ایڈوکیٹ 106 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری بن گئے۔ مجموعی طور پر 339 ووٹوں میں سے 285 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ نو منتخب صدر کا کہنا تھا کہ بار اور جوڈیشری کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ وکلا برادری کی فلاح و بہبود کا عزم ہے۔ 339 ووٹوں میں سے 285 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ ادھر دنیا پور بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں ملک اختر اقبال اوان گروپ نے میدان مار لیا۔ ملک اختر اقبال اوان 171 ووٹ لے کر صدر، عدنان طاہر کل 107 ووٹوں سے جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔
फातह उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, मिठाइयां तकसीम की। ईसा खेल बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का नतीजा भी आ गया। बार के 9 मुंतखब ओहदेदारों का मुबारकबाद पेश करने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब खुशाब बार इलेक्शन में सदर की सीट पर कायद आजम लॉयल ग्रुप के मलिक रमजान अवान ने 1 वोट से मैदान मार लिया। एडवोकेट मलिक कादर बख्श गंजियाल ने 9 वोटों से जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। नायब सदर की सीट पर पीर सैयद मुख्तार हुसैन शाह गिलानी कामयाब करार पाए। पूरे पैनल की जीत पर वकला ने जश्न मनाया। ढोल की थाप पर भंगड़ और मिठाइयां तकसीम की गईं। बहावलपुर में इलेक्शन कमीशन अक़लियती बरादरी को इंतखाबी अमल का फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए मुतहर्रिक। नए वोटों के इंदराज के लिए हुकाम की अक़लियती नुमाइंदों से मुलाकातों का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर रिजवान असलम ने अक़लियती रहनुमाओं से खुसूसी मुलाकात की और अक़लियती बरादरी खुसूसन ख़वातीन की वोटिंग इंदराज की शरह बेहतर बनाने पर जोर दिया। तफसीलात रजा मलिक की इस रिपोर्ट में देखिए। बहावलपुर में इलेक्शन कमीशन अक़लियती बिरादरी में वोट के इंदराज की शरह बेहतर बनाने के लिए सरगर्म हो गया। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर रिजवान असलम ने अक़लियती नुमाइंदों से खुसूसी मुलाकात की और अक़लियती बिरादरी खुसूसन ख़वातीन के वोटों के इंदराज पर जोर दिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन न सिर्फ ख़वातीन को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए इक़दाम कर रहा है, बल्कि उनके लिए नए शनाख्ती कार्ड के फौरी इजरा में भी मुआवनत फराहम की जा रही है ताकि कोई खातून वोट के हक से महरूम न रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो हमने आज सेगमेंट अपना करवाया है वो माइनॉरिटी के साथ था, जिसके अंदर माइनॉरिटी के जो लोग थे उन्होंने भी बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। उसमें फादर शहजाद साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा इसको सराहा और अपनी माइनॉरिटी को या अपनी माइनॉरिटी के लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आईडी कार्ड बनवाएं और उसके साथ साथ अपना वोट रजिस्टर करवाएं। अक़लियती रहनुमाओं ने इस मौका पर अपने भरपूर ताआवुन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वो अपनी बिरादरी खासतौर पर ख़वातीन को वोट रजिस्ट्रेशन के अमल में भरपूर तरीके से शामिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर रिजवान असलम ने मजीद कहा कि जिला भर में जेंडर गैप को कम करने के लिए तमाम वसाइल व रोएकार लाए जा रहे हैं। ख़वातीन को वोट इंदराज के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जा रही है ताकि आइंदा इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा ख़वातीन और अक़लियती वोटर्स अपनी राय का इजहार कर सकें। कैमरामैन अकरम शाहीन के हमरा रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। जनूबी पंजाब में सर्दी ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बहावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान में मौसम ने मरी का सा मंजर पैदा कर दिया। शहरियों ने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शुमाली इलाका जात के बजाय हेड पंच जाने का प्लान बना लिया। मुल्तान में दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक सर्दी बरकरार रहने की पेशगोई कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेरा तारिक की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत गैर मामूली हद तक बढ़ गई। मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान में यख बस्ता हवाओं ने निज़ाम जिंदगी मुतासिर कर दिया। सुबह और रात के औकात में सर्दी ने शहरियों को घरों तक महदूद होने पर मजबूर कर दिया, जबकि बाजारों में गर्म मलबूसात और हीटर्स की खरीदारी में भी नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। दोस्तों के साथ मुल्तान आए हुए हैं। इतनी सर्दी पहले शदीद कभी नहीं हुई जैसे अब है। ऐसा लगता है कि हम मरी में आए हुए हैं। जैसे मरी में सर्दी होती है अब वैसे इधर मौसम बना हुआ है। बहुत ही प्यारा मौसम है। हम आपको यही मशवरा देंगे, आप इधर आए, मरी की तरह का इधर मौसम बना हुआ है। बहुत ही प्यारा मौसम है। हमने भी बहुत इधर मजे एंजॉय किए। मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जो शुमाली इलाकों से भी कम बताया जा रहा है। शदीद सर्दी के बायस तालीमी इदारों में छुट्टियां भी बढ़ा दी गयी। दूसरी जानिब शहरी सर्द मौसम एंजॉय करने के लिए चाय, सूप और गर्म खानों से लुत्फानंदोज होते नजर आए। सर्दी बहुत ज्यादा है। मुल्तान में गर्म शहर है, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा है मौसम। हम यही कहना चाहेंगे कि आप आए, यहाँ घूमें, एंजॉय करें। सर्दी की इस लहर ने सियाहत के रुझानात भी बदल दिए हैं। मरी जाने का इरादा रखने वाले कई खानदानों ने अपना प्लान मनसूख करके जनूबी पंजाब के तफरीही मकामात जाने का प्लान बना लिया है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक सर्दी की ये लहर बरकरार रहने का इम्कान है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कैमरा टीम के हमरा सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। शदीद सर्द मौसम के बायस पंजाब के स्कूल मजीद 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। वजीर तालीम ने अवामी सर्वे की बुनियाद पर बड़ा ऐलान कर दिया। बच्चों की मौजें तालीमी इदारे अब 19 जनवरी से खुलेंगे। आपको बता रहे हैं शदीद सर्द मौसम के बायस पंजाब के स्कूल मजीद 1 हफ्ते के लिए बंद। वजीर तालीम ने अवामी सर्वे की बुनियाद पर बड़ा ऐलान कर दिया। बच्चों की मौजें तालीमी इदारे अब 19 जनवरी से खुलेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तलबा की सेहत की बेहतरी के लिए वजीर तालीम का बड़ा फैसला। पंजाब भर में स्कूलों की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गईं। फैसला वजीर तालीम के सोशल मीडिया पेज पर अवामी सर्वे की बुनियाद पर किया गया। वजीर तालीम के पूल में 19 जनवरी के हक में 1,54,178 आरा आई,
जबकि सर्वे में 24,829 वोट 12 जनवरी के हक में कास्ट हुए। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुताबिक फैसला मौसम की शिद्दत और तुलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। अवामी सर्वे में तकरीबन 87% अफराद ने छुट्टियों में तोसी के हक में राय दी। तमाम CEOs अपने अजला में फैसले का नफाज यकीनी बनाए। तालीमी इदारों में पहले 3 हफ्ते की छुट्टियां दी गई थी। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूल खुलने से 2 रोज कबल सर्दी की शदीद लहर के बायस छुट्टियों में 1 हफ्ते की तोसी करना पड़ी। बहावलपुर में सर्दी की शदीद लहर दिल के मरीजों पर भारी पड़ने लगी। कार्डियक सेंटर में हार्ट फेलियर के मरीजों में दोगुना इजाफा। कार्डियक सेंटर में मामूल के मुताबिक रोजाना हार्ट फेलियर के 5 से 10 मरीज रिपोर्ट होते थे, मगर अब ये तादाद बढ़कर 15 से 20 तक पहुंच गई है। इस हवाले से देखते हैं ताहिर जोधियाना की ये रिपोर्ट। पूर्व में सर्दी की शदीद लहर दिल के मरीजों को मुतासर करने लगी। कार्डियक सेंटर में हार्ट फेलियर के केसेस में 2 गुना इजाफा। असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियक सेंटर डॉक्टर उसामा का कहना है कि सर्दी के बायस चेस्ट इन्फेक्शन के साथ हार्ट, ये सूरत हाल पहले से दायमी अमराज का शिकार लोगों के लिए खतरनाक है। अच्छा, इस तरह के मौसम बहुत ज़्यादा ठंड है, तो जो सर्दी है वो हमारे कार्डियक पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे पेशेंट्स जिनका बाईपास हुआ हुआ है या जिनकी दिल की शरियानों में तंगी है, तो अमूमन हम उनको अवॉइड कराते हैं कि आप इस ठंड के मौसम में बाहर ना निकलें। माहिर अमराज दिल डॉक्टर उसामा का कहना था कि कार्डियक सेंटर में रोजाना मामूल के मुताबिक हार्ट फेलियर के 5 से 10 मरीज रिपोर्ट होते थे, लेकिन अब ये तादाद 15 से 20 तक पहुंच गई है। ये इजाफा सर्दी की लहर के बायस है, जो दिल की सेहत को बराह रास्त मुतासिर कर रही है। असर होने वाले ज्यादातर अफराद 50 साल से ऊपर के हैं, जिनकी कुव्वत मुदाफियत कम होती है। गर्म कपड़े पहनने, कमरे को गर्म रखने और सेहतमंद खुराक के जरिए इस खतरे को कम किया जा सकता है। देखिए, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो इमरजेंसी में डील करते हैं वो तो उसकी क्वांटिटी, मतलब जो नंबर होते हैं वो तो वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है, ठीक है। रूटीन में हमारे पास चेस्ट पेन्स के पेशेंट ज़्यादा होते हैं और हार्ट फेलियर के ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन इस मौसम में चेस्ट पेन के पेशेंट तो रूटीन उसी तरह चलती रहती है, लेकिन जो हार्ट फेलियर नंबर ऑफ पेशेंट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पहले 10 पेशेंट डेली आ रहे हैं तो वो 10 से बढ़ के 15 तक चले जाते हैं। मतलब ये एक नॉर्मल वेरिएंट है हमारे लिए। माहिरीन सेहत मशवरा देते हैं कि बूढ़े अफराद और दायमी मरीज बाकायदगी से डॉक्टर से राब्ते में रहें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि मजीद पेचीदगियों से बचा जा सके। बहावलपुर के रिहायशियों को इस मौसम में अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन शासकलैन हैदर के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। मुल्तान वासा की गफलत या मुबैना नाअहली गुलगश्त कॉलोनी में लीक वाटर सप्लाई लाइन को 4 रोज बाद भी मुरम्मत न किया जा सका। पानी जमा होने की वजह से शहरियों के लिए गुजरना मुश्किल हो गया। इलाका मकीनों का वासा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, कहते हैं 4 दिन से शिकायत दर्ज करा रहे हैं, मगर वासा का अमला मसला हल नहीं कर रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान जमीर। मुल्तान वासा की मुबैना नाअहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। गुलगश्त कॉलोनी में पीने वाले पानी की पाइपलाइन लीक होने से पानी गलियों में जमा, शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। इलाका मकीन कहते हैं 4 दिन हो चुके, वासा इंतजामिया पाइपलाइन मुरम्मत नहीं कर पाई। शिकायत करते हैं तो वासा वाले सर्वे करके चले जाते हैं, मसला हल नहीं कर रहे। ये जी काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। वासा को जाके कंप्लेन लिखवाते हैं, बार बार लिखवानी पड़ती है हमें कंप्लेन, तो कंप्लेन के आ जाते हैं, देख के तो फिर चले जाते हैं। दूसरी दफ़ा फिर जाना पड़ता है हमें कि यार वो अभी ठीक नहीं हुआ, आके ठीक करके जाओ। आते हैं तो देख के चले जाते हैं। ताजरों का कहना है कि सड़क पर पानी जमा होने की वजह से कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। ग्राहक भी पानी की वजह से रुकने को तैयार नहीं। कोई कारोबार नहीं हो रहा, पानी की वजह से कोई ग्राहक पे नहीं आता। और सफाई का भी इंतजाम ये है कि मुहर्रम पे सफाई होती है और मुहर्रम पे ही दोबारा होती है जी। 1 साल के बाद ये सफाई होती है और सफाई करने वाले भी कोई नहीं आते। कस्टमर आते नहीं है, कस्टमर काफ़ी बिहेव करते हैं, कह रहे हैं ये तुम्हारा सैलून है क्या, कचरा खाना है, जितना आगे कचरा पड़ा होता है। 3-4 दफ़ा 2 गाड़ियाँ आई, वो भी देख के चली गई, हाँ हम अभी आते हैं, करके चले जाते हैं। वासा इंतजामिया फौरी तौर पर वाटर सप्लाई लाइन की मुरम्मत करे ताकि इलाका मकीनों को घरों में साफ पानी दस्तयाब हो सके और उन्हें आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात भी खत्म हो। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। लोधरा शहर में सड़कों के मसाइल हल न हो सके। मॉडल सिटी से हवेली नसीर खान को मिलाने वाली 7 किलोमीटर तवील सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाल सड़क के बायस अहले इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना आसिफ हनीफ। लोधरा में मॉडल सिटी से हवेली नसीर खां तक सड़क टूट फूट का शिकार। ये सड़क 25 बस्तियों को शहर से मिलाती है। इन बस्तियों के मकीनों का शिकवा है कि गुज़िश्ता 30 साल से ये सड़क टूटी हुई है। अब हालात ये हैं कि मरीज तो दरकिनार, तंदुरुस्त अफराद का भी सड़क पर सफर करना इंतहाई तकलीफदेह है। हल्के से मुंतखब मेंबरान असम्बली भी अपने घरों को जाने के लिए यही सड़क इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद उन्होंने सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए आज तक कोई इकदाम नहीं किए। ये सड़क 30 साल हो गए तकरीबन, इस सड़क का कोई जो है ना से हाल नहीं है। हमने बड़ी दफ़ा कोशिश की है, हमारे मुकामी जो MNA है, MPs हैं, उनके पास भी हम गए हैं और इंतजामिया के पास भी हम गए हैं, कोई बंदा सुनने वाला नहीं है। जी हमारी यही गुजारिश है, जो भी हमारे MP MNA हैं
ये रोड बहुत टूटा हुआ है, इस जहाँ से ये लोग जो है ना वो नहीं गुजर सकते बेचारे। बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं, लोग जाते हैं जो बीमार होते हैं वो अस्पताल उनको पहुंचने से पहले यहाँ पे उनका जो है ना काम तमाम हो जाता है। हमारा कारोबार जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इस रोड की वजह से। हवेली नसीर खान रोड मेम्बरान असम्बली की रिहाइश गांव के बाइस तहसील लोधरा में इंतहाई अहमियत और शोहरत रखती है। अहले इलाका ने मेम्बरान असम्बली और डिप्टी कमिश्नर लोधरा से सड़क की असर नौ तामीर का मुतालबा किया है। कैमरामैन सजाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। आरपीओ बहावलपुर का सादिकाबाद में ख्वाजा सरा के कत्ल का नोटिस। आरपीओ की डीपीओ रहीम यार खान को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। ख्वाजा सरा शरीफ उर्फ आलिया कत्ल केस तहकीकात तेज। डीपीओ रहीम यार खान को मुल्जिमान को जल्द कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। कत्ल में मुलव्विस नासिर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गईं। मुल्तान में रोही की खबर पर एक्शन। महकमा सिविल डिफेंस ने गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया। गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स को कब्जे में लेकर मुकदमात का इंदराज करवाया जा रहा है। इस हवाले से हसन मलिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में महकमा सिविल डिफेंस ने गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ शिकंजा मजीद कस दिया। गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। पेट्रोल यूनिट्स को कब्जे में लेकर महकमा सिविल डिफेंस के दफातर मुंतकिल कर दिया गया। ये वो लोग हैं जो एक ऑयल माफिया है जो गैर कानूनी काम में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा के हुक्म पर इसके ऊपर सख्त क्रैकडाउन जारी है। हम डेली बेसिस पे मशीनें अपने कब्जे में ले रहे हैं। सिविल डिफेंस ऑफिसर अरशद हमीद सिंधु का कहना था कि गैर कानूनी माफिया के खिलाफ सिविल डिफेंस की कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हदायत पर यह ऑपरेशन किया जा रहा है। अवाम से ये गुजारिश है कि इन लीगल काम करने वालों को फौरी तौर पर बेनकाब करें और जो काम कर रहे हैं मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर काम को बंद कर दें वरना उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। महकमा सिविल डिफेंस के हुकाम ने इस अज़्म का इजहार किया है कि ऑयल माफिया के खिलाफ एक्शन बिला तातुल जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर की डिमांड भी बढ़ गई। तलब बढ़ने से घंटा घर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर की कीमतें भी दुगनी हो गईं। तफसीलात फराज रमजान की रिपोर्ट में देखिए। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर की मांग भी बढ़ गई। शहरियों ने इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर खरीदने के लिए घंटा घर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स का रुख कर लिया। इलेक्ट्रिक हीटर 3000 से 10,000 जबकि इलेक्ट्रिक गीजर 15,000 से 50,000 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदार का कहना था कि इनकी कोशिश है कि मुनासिब कीमतों पर सामान फरोख्त करें लेकिन शहरी लागत से भी सस्ती चीजें चाहते हैं। तो सर्दी के पेश नज़र अल्हम्दुलिल्लाह सीधा गीजर और हीटर की डिमांड बढ़ चुकी है और गीजर और हीटर की डिमांड बढ़ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुनासिब प्राइस पर हम लोग कस्टमर को सेल आउट कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि एक हफ्ते पहले जो हीटर 3,000 रुपए का था वो आज 5 से 6,000 रुपए का मिल रहा है। एक वीक पहले जब आए थे तो सर्दी की शिद्दत में इतना इजाफा नहीं था, तो तब प्राइस ये थी कि तकरीबन 3,000 की थी ऑलमोस्ट। आज जब हम आए तो वो प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। जैसे आपको पता है रात के टाइम पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 डिग्री तक जा चुका है, तो ये है कि गीजर और हीटर के बिना तो बिल्कुल भी आपको पता गुजारा नहीं है। शहरियों ने मजीद कहा कि सर्दियों में गर्म पानी और हीटर के बगैर गुजारा नहीं। बच्चों के बीमार होने के डर से गीजर और हीटर खरीदने आए हैं। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। शदीद सर्दी की लहर में खुश्क मेवाजात की डिमांड भी बढ़ गई है। मुल्तान में शहरियों ने पिस्ता, बादाम और काजू खरीदने के लिए ड्राई फ्रूट वाली दुकानों का रुख कर लिया है। इस हवाले से फराज रमजान की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्तान में सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर खुश्क मेवाजात की डिमांड में इजाफा। शहरियों ने पिस्ता, बादाम और काजू खरीदने के लिए ड्राई फ्रूट शॉप्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि सर्दियों में पिस्ता और बादाम खाने से जिस्म गर्म रहता है और तवानाई भी मिलती है। बस रेट तो तेज हुए, सर्दी जैसे बढ़ती है तो इसलिए पीछे से रेट भी बड़े हुए आ जाते हैं हमारे पास, बहुत तेज रेट हो जाते हैं। तो बादाम इस टाइम 3600 रुपये किलो हम दे रहे हैं। अमेरिकन पिस्ता 4000 रुपये किलो है। काजू भी 3600 रुपये किलो है। उसमें भी वैरायटी है, फिर कम भी है, तेज़ भी है, हर चीज़ में। अखरोट तकरीबन 3200 रुपये किलो है, अच्छे वाला, अच्छे क्वालिटी का। चनगोज़ा 3 वैरायटी में पड़ा है, 8 भी है, 64 भी है और 12,000 भी है। दुकानदार के मुताबिक सर्दी बढ़ने के साथ ही खुश्क मेवाजात भी महंगे होने लगे हैं। सीजन के आगाज पर रेट कुछ और था मगर आजकल रेट ज्यादा हैं। काजू और पिस्ता 4,000, बादाम 3600 रुपए फी किलो हैं। सीजन के शुरू में चरगोजा 7,000 रुपए फी किलो था मगर आज 12,000 रुपए फी किलो है। हमने खरीदा जी काजू है, ये अखरोट की गरी है और ये पिस्ता है, थोड़ा सा कुछ हालात के मुताबिक ही है। सर्दी भी इतनी है और ये फायदेमंद भी है। फायदेमंद तो है।
फायदे मंद हैं, लेकिन जेब इजाजत दे तो ज्यादा बेहतर होते हैं। बहुत महंगे हैं बहुत महंगे। शहरियों का कहना था कि खुश्क मेवाजात महंगे होकर आवाम की पहुंच से दूर जा चुके हैं, इसलिए थोड़े थोड़े खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। THQ अस्पताल शाहपुर सदर में मियां मोहम्मद उस्मान पराचा सर्जिकल ट्रॉमा ब्लॉक और टोकन काउंटर की इफ्तिताही तकरीब। पार्लिमानी सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक सरदार आसिम शेर मेकन, AC डॉक्टर आबिद मुमताज खान मेहमान खसूसी शरीक। पार्लिमानी सेक्रेटरी का कहना था कि सर्जिकल ट्रॉमा ब्लॉक की तामीर एक मुस्बत इकदाम है। AC शाहपुर का कहना था कि सर्जिकल ट्रॉमा ब्लॉक का मकसद अवाम को बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करना है। ब्लॉक की तामीरात में मियां सुभान पराचा की खसूसी काबिज शामिल। तकरीब के इख्तिताम पर मियां उस्मान पराचा सर्जिकल ट्रॉमा ब्लॉक का इफ्तिताह किया गया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। रहीम यार खान के इलाका जमालदीन वाली में पोजीशन होल्डर तलबा और उनके टीचर्स के एजाज में तकरीब। साबिक गवर्नर मखदूम सैयद अहमद महमूद ने 53 सरकारी स्कूलों के तलबा और असातिज़ा के लिए 2 करोड़ अपनी जेब से बतौर इनाम दिया। MNA हल्का NA 173 मखदूम सैयद मुस्तफ़ा महमूद ने कहा कि तालीम पर फोकस करके ही मुल्क और कौम का मुस्तकबिल रोशन होगा। तफसीलात आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। रहीम यार खान हल्का NA 173 में तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से अमली इक़दाम का सिलसिला जारी। जमालदीन वाली में हल्के के 53 सरकारी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात और उनके उस्ताज़ा के एजाज में परवकार तकरीब मुनक्किद की गई। साबिक गवर्नर पंजाब और सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने हल्का के 53 सरकारी स्कूलों के पोजीशन होल्डर्स तलबा और उस्ताज़ा में मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए इनामात अपनी जेब से तकसीम किए। मखदूम सैयद अहमद महमूद के साहबजादे मखदूम सैयद मुस्तफ़ा महमूद ने अपने हाथों से तलबा और उस्ताज़ा को इनामात दिए। मखदूम सैयद मुस्तफ़ा महमूद ने तकरीब से खिताब में कहा, हल्के के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए गए, साली इस्लाहात ला रही है। ये स्कूल महज इदारे नहीं बल्कि 53 मुस्तकबिल की कंपनियों की बुनियाद है, जहाँ से आने वाले कल तैयार हो रहा है। साबिक MP मखदूम सैयद उस्मान महमूद ने खिताब में कहा कि तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि सब्र, बर्दाश्त और बेहतर इंसान बनना है। उन्होंने उस्ताद और वालिदैन के एहतराम पर जोर देते हुए कहा, बच्चों को तालीम के साथ साथ बेहतरीन तरबियत देना वक्त की अहम जरूरत है। मखदूम सैयद अहमद महमूद का वेन है, सियासत हमेशा ईमानदारी और खिदमत के जज्बे के साथ की जाए। मेहनत करके अपने स्कूल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, उन वालिदैन का, उनके बच्चों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो तशरीफ लेके आए हैं। मुझे पता है कि हमारे एजुकेशन के हवाले से हमारी हुकूमत भी बहुत काम कर रही है। मैं पंजाब में मिनिस्टर साहब के दफ्तर जाके, क्योंकि जैसे कि बताया मलिक साहब ने कि मेरे क्लास फेलो भी वो थे, हम इकट्ठे एचसन कॉलेज में पढ़ते थे, तो उनके दफ्तर पे जाके जो मैंने खुद वहां पे चीजें देखी है, जो इनिशिएटिव्स वो लेके आ रहे हैं, AI को जिस तरह लेके आ रहे हैं तालीम के निजाम में, तो मेरे ख्याल में ये सिस्टम जो है बहुत जल्दी बदलेगा और बहुत जल्दी इसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। तकरीब में डिविजनल सदर पीपल्स पार्टी इंजीनियर जावेद अकबर ढिल्लों, CEO एजुकेशन मलिक मोहम्मद आमिर, महकमा तालीम के अफसरान, उस्ताद, तलबा और तालिबात और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़िलाई सदर पीपल्स पार्टी और MPA सरदार हबीबुर रहमान खान गोपांग ने कहा, इस काबिल तारीफ इक़दाम से मुस्तकबिल के मामारों में हसूल इल्म का जज्बा पैदा होगा। शुरका का कहना था, तकरीब से न सिर्फ तलबा और उस्ताज़ा की हौसला अफजाई होगी बल्कि हल्का NA 173 में तालीमी मयार मजीद बेहतर होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान।